اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سورہ قاف جس کا نمبر 50 ہے کی آیات نمبر 18 تک گزشتہ درس میں ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور آیت نمبر 16، 17 اور 18 جن کی میں نے دوبارہ تلاوت کی ہے، ان کا دوبارہ میں ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں کہ ہم نے انسان کو پیدا کی، ہم جانتے کیا وسوسے اور وسپرنگ ہوتی ہے، اور ہم اس کے قریب ہیں اس کی شارک سے بھی زیادہ۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ بعض علماء کے نزدیک آیت کا جو دوسرا حصہ ہے یہ فرشتوں کا کلام ہے، اور بعض کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے کہ ہم انسان سے اس کی شارک سے بھی قریب ہیں، کیونکہ جسمانی طور پر تو نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے مبرہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے یہ اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات کہی گئی تھی جس کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ ہے، جب دو ملنے والے ملیں گے، انسان کے سیدھی جانب دائیں جانب اور بائیں جانب، اور اس کو بٹھایا جائے گا، اور پھر یہ فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے لیے ایک نگہبان ہے، ایک مانیٹر ہے جو تیار بیٹھا ہے، اس کی باتوں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہا کہ میں نے پانی پیا، میں نے کھانا کھایا، تو یہ الفاظ بھی انسان کے نامہ اعمال کے اندر ریکارڈ ہو جاتے ہیں کہ ایک لحاظ سے انسان اپنی زبان کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19، 20 اور اس کے بعد کی چند مزید آیات کا تعلق عالم آخرت کے ساتھ ہے۔ اگرچہ عالم آخرت شروع ہو جاتی ہے جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، تو عالم آخرت شروع ہو جاتی ہے، لیکن پھر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ عالم آخرت کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اور اس سے پہلے جو وقت ہے
जो इंसान कब्र में गुजारेगा मौत के बाद, उसको आलम बरज़ख कहते हैं। तो ये पहली 3 आयतें आलम बरज़ख के साथ थी, और इसके बाद अब जो 2 आयात हैं, 3 मज़ीद आयातें, उन तमाम का ताल्लुक आलम आखिरत के साथ है। और यकीनन इन आयात के अंदर ऐसी अ, मंज़र कशी की गई है, ऐसे इमेजेस पेश की गए हैं कि जिनको ईमान वाला पढ़कर, सुनकर, देखकर उसका ईमान जो है वो मज़बूत होना चाहिए। किसके ऊपर? आखिरत के ऊपर, अल्लाह के साथ मुलाकात के ऊपर, और अल्लाह के जो वादे हैं कि जो उसने अपने किताबों के अंदर और अंबियाए किराम के ज़रिए उसने किए थे, वो तमाम वादे इंसान की जब आँख बंद होती है, जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर, और उसकी दूसरी आँख खुलती है, तो वो तमाम वादे पूरे होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इन आयात के अंदर एक मुसलमान का ईमान जो है पुख्ता होना चाहिए। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत की तिलावत फरमाया करते थे, जुमा के रोज़, सूरह काफ के अलावा इस सूरत की भी आप तिलावत फरमाया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ आयत नंबर 19 के अंदर बयान फरमाया कि वजाअत सकरतुल मौत, और सकरतुल मौत आई बिल हक, हक के साथ, यानी फिल वाक़या, और उसके अंदर कोई इनकार नहीं, कोई शक नहीं, कोई तरद्दुद नहीं। वाक़ियतन सकरतुल मौत आई। और सकरतुल मौत का तर्जुमा हम लोग उर्दू में क्या करते हैं? हालत नज़ा। सकर का अगर आपने लफ्ज़ सुना हो, तो सकर एक माने में ये इस्तेमाल होता है कि इंसान के ऊपर ऐसी कैफ़ियत तारी हो जाए कि इंसान अपने होशो-हवास खो बैठे। और बाज़ औक़ात ये कैफ़ियत पैदा होती है इंसान के ऊपर नशे की हालत में, शराब पीने की हालत में, या इंसान के ऊपर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ऐसी हालत पैदा हो जाए कि इंसान अपने होशो-हवास खो बैठे। और उसकी एक छोटी-सी मिसाल ये है कि जब हम नींद के अंदर होते हैं, तो हमारे होशो-हवास आलम ख़्वाब के अंदर होते हैं। इवन दो कि हम ख़्वाब के अंदर दौड़ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जहाज़ में बैठ रहे हैं, खा-पी रहे हैं, लेकिन वो आलम ख़्वाब के अंदर होते हैं। तो ये सकरतुल मौत की एक छोटी-सी मिसाल है। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? वजाअत सकरतुल मौति बिल हक़, यानी ये एक बात अटल हकीकत है, चाहे कोई इंसान आलम बरज़ख को, आलम आखिरत को, और खुदा को और अंबियाए किराम को नहीं भी मानता हो, लेकिन जब उसके ऊपर मौत की जो है ना हालत नज़र जब तारी होगी, तो उस वक़्त उसको यकीन हो जाएगा कि मौत बरहक है, और अब मैंने दोबारा इस दुनिया के अंदर वापस नहीं जाना है। तो सकरतुल मौत का माना ये है कि जब हालत नज़ा इंसान के ऊपर तारी हो जाती है, तो हालत नज़ा वो जो होती है, वो बहुत ही पेनफुल होती है। वो बहुत ही पेनफुल होती है। और सहाबा कराम ने, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र आखिरत का मुशाहिदा किया, कि उस वक़्त भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दर्द को, इस कैफ़ियत को आप महसूस फरमा रहे थे। तो ये क्योंकि उस वक़्त इंसान की रूह को बदन से निकाला जा रहा होता है, और जब ये किसी चीज़ को खींचते हैं, तो उस वक़्त जिससे खींचा जा रहा होता है, तकलीफ़ महसूस होती है। और ये तकलीफ़ सिर्फ़ मरने वाला जो है, वो महसूस कर सकता है। हम तो ज़ुबानी तौर पर कह सकते हैं बस। और अ, अल्लाह तबारक व तआला से जब हम दुआ करें, तो हम दुआ भी ये भी अल्लाह से दुआ करें कि हमारा हमारा सकरातुल मौत जो है, वो लेस पेनफुल हो, और वो ईमान
اور कलमा शहादत के साथ हो या अल्लाह का ज़िक्र करती हुई हो, ताकि ये जो ट्रांज़िशन है, ट्रांसफ़र हो रहा है मटीरियल वर्ल्ड से बरज़ख की तरफ, ये क्विक हो, लेस पेनफुल हो और आसान हो, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हमारे ऊपर उस वक़्त भी हो। लेकिन ये एक प्रोसेस है, इसलिए उसके अंदर तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, ये वो हकीकत है कि जिसको तू अवॉइड करता था दुनिया में। दुनिया में इंसान तमाम मुश्किलात को, तकलीफ़ों को, दर्दों को बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब उसके सामने मौत का ज़िक्र आता है, तसव्वुर आता है, तो इंसान उससे अवॉइड करता है और उससे जान छुड़ाना चाहता है। लेकिन ये बहरकैफ़ एक हकीकत है, और अहले ईमान के लिए जो है, ये एक खुशी का मामला है। और इसकी मिसाल मुझे याद आ रही है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब सफ़र आखिरत करीब आ गया और ये बात यकीनी हो गई कि आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले हैं, तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा वावेला कर रही थी, अफ़सोस कर रही थी और दुखी हो रही थी कि हज़रत बिलाल अभी जाने वाले हैं। तो उस तकलीफ़ के वक़्त में भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया? वावेला नहीं, खुशी का मकाम है कि कल मेरी मुलाकात होगी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब के साथ, और आपके प्यारों के साथ मेरी मुलाकात होगी। तो गोया ये उनका यकीन था, माशाअल्लाह कितना ईमान उनका मज़बूत था कि उस तकलीफ़ में उन्होंने कहा बर्दाश्त किया, ये तकलीफ़ वक़्ती तौर पर है, लेकिन इसको क्रॉस करने के बाद मेरी मुलाकात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहबाब के साथ होगी, तो मुझे यहाँ इस वक़्त तकलीफ़ का वावेला जो है वो नहीं करना चाहिए। तो लेकिन आम इंसान जो है, वो क्या फरमाया? मा कुन्त मिन्हु तहीद, जिसको आप अवॉइड करना चाहते थे। इसी तरह इसी से लफ्ज़ है इहादी, अरबी ज़ुबान में, जिसके माने हैं कि जो शख्स न्यूट्रल रहना चाहता है और जो किसी की साइड ले लेता है, उसको भी अहादी कहते हैं। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरे, अब हम क्रॉस कर रहे हैं जनाब आलमे बरज़ख के बाद। आलम बरज़ख का बयान हो चुका है। अब आलम आखिरत जो वाक़िअतन है, उसका ज़िक्र हो रहा है कि उसका आगाज़ कैसे होगा। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद, और एक सूर फूँका जाए। गोया इंसानों को जो अबदी नींद सो रहे थे, यानी आलम बरज़ख के अंदर तमाम इंसान गोया सो रहे हैं वैसे, और उनको उठाने के लिए हाथ नहीं लगाना है, झंझोड़ना नहीं है, बल्कि उनको एक सूर फूँका जाएगा, ट्रम्पेट जो है, और उसको सुनकर ऑटोमेटिकली इंसान अपनी कब्रों से उठेंगे, और उसके जवाब में वो सीधे किस डायरेक्शन की तरफ चलेंगे? तेरी पूरी दुनिया से वो तमाम जो हशर का मैदान होगा, यानी जो हशर का मैदान सरजमीन शाम है, इसके अंदर बर्पा होगा, तो तमाम के तमाम वहाँ उस आवाज़ के पीछे चलते हुए कहाँ जाएँगे? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर पेश होंगे हाज़िरी के लिए। और जिसको अल्लाह ताला ने सूरह मारिज में क्या फरमाया? 50,000 साल का होगा। अल्लाह तबारक व तआला की एस्टिमेशन में अल्लाह ने उसकी मियाद 50,000 साल रखी है, कि अल्लाह के इल्म के अंदर है कि इंसानों का हिसाब किताब करने में कितनी देर लगेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो उस हिसाब से उस दिन का हिसाब जो है वो तय किया है, कि नहीं कि 30,000 साल है, तो उसके बाद कह दें कि जी 20,000 और ऐड कर रहे हैं, या 30,000 रखा था, उससे पहले हिसाब हो जाएगा, तो नहीं अब 20,000 नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म जो है, उसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं है। उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि इंसान की एस्टिमेशन में होती है कि आपने 10 आदमी को खाने पे बुलाया और खाना कम पड़ गया, तो आपको दोबारा मंगवाना पड़ा,
یہ آپ نے بنایا بہت زیادہ بن گیا آپ سے اور 10 آدمی نہیں کھا سکے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حساب ہے وہ 100% جو ہے وہ قریب صحیح ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، نفخ فی الصور ذالک الیوم الوعید، دو پریشانیاں انسان کی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ ایک جب سکرات الموت آتی ہے انسان کی تو اس وقت کی پریشانی ہے کہ انسان مٹیریل دنیا سے نکل رہا ہے، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت انسان جب اٹھیں گے تو اس وقت کیا کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کہ یہ انسان یہ آواز اٹھائیں گے کہ اے حسرت، اے افسوس کی بات، کس نے ہمیں اپنی گہری نیند سے اٹھایا۔ ہاں، یہ سورہ یاسین میں ہے کہ ہمیں کس نے ہمیں اس نیند سے ڈسٹرب کر کے اٹھا دیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یوم الوعید، دس از دا ڈے آف وارننگ، یہ بات بتائی گئی تھی انسان کو اور وہ بات واقع ہو گئی ہے۔ اور سورہ معارج کے اندر یہ بھی ذکر کیا ہے اللہ نے کہ اس دن کو ہم قریب سمجھتے ہیں، لیکن انسان اس کو سمجھتا ہے کہ ابھی بہت دور ہے، ابھی بہت دور ہے۔ یہ انسان کا رویہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر ذی روح کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ کیا ہوا، ایک سائق آئے گا اور ایک شہید آئے گا۔ اب سائق اور شہید کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے مفسرین نے تعویلات کی ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ سائق سے مراد ایک وہ فرشتہ ہوگا جو انسان کو ہانکتا ہوا، اس کو پش کرتا ہوا میدان حشر تک لے جائے گا، ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ دو ہوں گے، ایک سائق ہوگا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے عربی زبان میں گلف کے اندر ڈرائیور کو کیا کہتے ہیں، سائق۔ تو ساق یسوق کے معنی ہے کہ پش کرنا، کسی چیز کو ڈرائیو کرنا، کسی کو چلانا۔ تو ایک فرشتہ انسان کو چلائے گا، اس کو ہانک کر لے جائے گا، اور اس کے ساتھ ایک شہید ہوگا جو کہ گواہ ہوگا۔ اب ان دونوں میں سے ایک ہمارے مفسرین کہتے ہیں شہید سے مراد انسان کا اعمال نامہ ہوگا، وہ اس کے ساتھ جائے گا، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ شہید سے مراد وہ فرشتہ ہوگا جس کے ہاتھ میں انسان کا اعمال نامہ ہوگا، ایون دو کہ ہمارے جو کرامن کاتبین ہیں دو ہیں، تو اختصار کے ساتھ یہ کہیں کہ دونوں ہی فرشتے انسان کو ساتھ لے جائیں گے۔ کہاں تک اس کے ساتھ جائیں گے؟ جنت اور دوزخ کے دروازے تک، وہاں تک وہ انسان کے ساتھ جائیں گے۔ اور ان کا آغاز کب ہوا تھا؟ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی جو فائنل ڈیسٹینی ہے وہاں پر اس کو چھوڑ کر وہ آئیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر نفس کے ساتھ ایک سائق آئے گا اور ایک شہید آئے گا، اور شہید کے معنی آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جن کو موت آتی ہے، اور شہید کے معنی جو گواہ ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں ویسے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بے شک اے حضرت انسان، تم اس حقیقت سے، آج کے روز کے واقع ہونے سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ یعنی غفلت کا معنی یہ ہے ایون دو کہ تمہارا ایمان تھا کہ یہ دن واقع ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کی تیاری تم نے نہیں کی، اس کو تم نے اہمیت نہیں دی، تم نے اس کو ایز اے پرائیورٹی نہیں بنایا۔ یہ ہے معنی غفلت ہے۔ یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس غفلت کے ہیں، معنی کہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے، وہ جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ غفلت سے مراد یہاں پر میری آج اس ناقص رائے کے اندر یہ ہے کہ جن کے ایمان کا یہ حصہ تھا کہ یہ دن واقع ہوا، وہ اس کی تیاری سے غفلت کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اور آپ اس کو وائڈر معنی بھی لے سکتے ہیں کہ عام انسان جو اس کو بلیو نہیں کرتے تھے، یعنی غفلت کے معنی ہے کہ وہ لا علمی کے اندر مبتلا تھے،
इसके बारे में वो बात नहीं करते थे, क्योंकि इसके बारे में बात करने से तल हकीकतें जो है वो सामने पेश होंगी। फकशफना अन्का गिताअका, तो हमने तुम्हारी आंख के ऊपर जो पर्दा था उसको हटा दिया। फबसरुकल यौम हदीद, तो आज तुम्हारी निगाह जो है वो तेज है। हदीद कहते हैं लोहे को, यानी तुम्हारी निगाह इतनी तेज है जितना कि शार्प लोहा होता है। तो इसलिए बाज बुजुर्ग कहते हैं कि जिनकी आंखों के अंदर, बीनाई के अंदर कमजोरी हो, तो वो इस आयत का वजीफा पढ़ा करें। ये जो आयत है, लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद, और भी इसके बारे में लोग, हमारे बुजुर्गान दीन ने वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये एक वजीफा बताया गया है कि इस आयत का कसरत से विर्द किया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आंख की बीनाई जो है उसकी इस्लाह फरमाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अब अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेशी हो रही है, और पेशी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वहां इंसाफ के जितने तकाजे हो सकते हैं, इंसाफ के, अदल के जितने तकाजे हो सकते हैं, जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है, ऐसे तकाजे, ऐसे एविडेंसेस, वो तमाम के तमाम हजरत इंसान के सामने पेश किए जाएंगे। और ये देखें अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत, कि वो हमारे किसी फेल से, हमारे किसी कौल से, हमारे किसी दिल के अंदर जो हमारे ख्यालात आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे लाइल्म नहीं है। तमाम दुनिया भर की मखलूकात की तमाम हरकत उसके सामने है, आलिमुल गैब व शहादत है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंसान के सामने अदलो इंसाफ कायम फरमाएगा कि वो इंसाफ का दिन है। और फिर हजरत इंसान की नेचर क्या है दुनिया के अंदर हमारी, कि अगर हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगता है, और वो इल्जाम नहीं होता बल्कि हकीकत भी होती है, तो इंसान उसको, सारे के सारे इंसान नहीं, लेकिन ये कि अक्सर इंसान उसको मानने से इनकार करते हैं। और इंसान की नेचर दूसरी क्या है, भूल जाने की। कि इंसान का है कि मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे क़यामत वाले दिन कि दुनिया में कितनी देर रहे, तो लोग कहेंगे हम तो शायद आधा दिन या एक दिन रहे। हालांकि लंबी लंबी उम्रें लोगों को अता हुई थी, लेकिन ये उस दिन के मुकाबले में, उसकी हौलनाकियों के मुकाबले में देखकर इंसान कहेगा दुनिया की जिंदगी तो चंद घंटे की थी वैसे। और एक और इंसान की नेचर है कि इंसान हठधर्म है, इंसान आर्गुमेंट करता है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो इन तमाम के तोड़ के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला को नऊज़ुबिल्लाह इंसान कहे कि जी ये चीज तो ऐसी तो मैंने नहीं किया था, तो फौरन उसका एविडेंस अल्लाह तबारक व तआला पेश फरमा देंगे। और कुरान पाक के अंदर ये लफ्ज़ शहीद और इसकी प्लूरल अशहाद, विटनेस, विटनेसेस, ये जिक्र आया है। तो विटनेसेस के अंदर कौन कौन लोग होंगे? विटनेसेस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला होंगे, विटनेसेस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया इकराम होंगे, विटनेसेस के अंदर अल्लाह के फरिश्ते होंगे, विटनेसेस के अंदर हमारा अपना नफ्स और हमारी बॉडी की ऑर्गन जो हैं वो विटनेसेस होंगे। और विटनेसेस के अंदर हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिस जमीन के जिस हिस्से में हम बैठे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो हम हरकत कर रहे हैं, अच्छी और बुरी कर रहे हैं, वो जमीन के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। जैसे हमारी ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसी तरह हमारी तमाम चीजों की रिकॉर्डिंग अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हो रही है जमीन के अंदर। और इस जमीन को भी हमारे हक में या हमारे खिलाफ बतौर गवाह जो है, बतौर विटनेस पेश किया जाएगा। इसलिए कुछ बुजुर्गान दिन लिखते हैं कि अगर किसी इंसान से किसी जमीन के एक हिस्से में गुनाह सरजद हो जाए, तो एक तो ये कि तौबा की जाए, और दूसरा यह है कि उस जमीन के हिस्से में नेक काम किया जाए वैसे, ताकि वो जमीन का वो हिस्सा भी इंसान के लिए गवाही दे,
अगर एक तरफ उसके खिलाफ जा रहा है तो एक तरफ उसके हक में जा रहा है कि यहाँ अल्लाह इस तेरे बंदे ने हाँ गुनाह किया था, लेकिन मेरे ऊपर इसने ये काम नेक भी किया था। तो इसलिए और मस्जिद की तरफ जो हम वॉक करते हैं, वैसे ये जो हम मस्जिद की तरफ वॉक करते हैं, स्टेप उठाते हैं जाती और आती हुई, इंशाअल्लाह ये भी हमारे हक के अंदर गवाही देंगे और हमारे गुनाहों की मतलब माफी और दर्जात की बुलंदी जो है उसके हक में हमारे लिए काफी जो है ना वो मुअस्सिर और कामयाब होगी। अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेशी हो गई है अभी, तो क्या होगा? वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद। क़रीन किसको कहते हैं? कंपेनियन को, जोड़ को। किसी क़ारन युक़ारिनु के माने है किसी चीज को कंपेयर करना, मिलाना, जोड़ना। और करीन से मुराद ये है कि वो फरिश्ता जो रिकॉर्ड उसके हाथ में था वो आएगा। वक़ाल क़रीनुहु, इंसान का करीन और उसका साथी फरिश्ता आएगा, कहेगा हादा ये मा लदय्या मेरे पास है, अतीद जो तैयार है। ये है इन इंसान का रिकॉर्ड। और कितना रिकॉर्ड होगा? 99 रजिस्टर होंगे। और वो 99 रजिस्टर इतने एक्सटेंसिव होंगे, इतने वसी होंगे, इंसान की हद निगाह तक जो है वो फैले होंगे। और कोई चीज जो है, जैसे सूरह काफ में है, मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस किताब को क्या हुआ है, इसने न तो कोई छोटी चीज छोड़ी है, न कोई बड़ी चीज छोड़ी है, मगर हर एक चीज को इसने रिकॉर्ड किया है। तो वहां करीन जो इंसान का फरिश्ता उसके साथ अटैच होगा, वो इंसान का अमाल नामा वहां लेकर जाएगा और अल्लाह के सामने पेश करेगा कि ये इनका अमाल नामा है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला के इंसाफ को, उसकी अदालत को, ये तमाम एविडेंसेस वहां पर पेश की जा रहे हैं। और उन एविडेंसेस की बुनियाद के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला को हक होगा कि वो इंसान के बारे में फैसला। लेकिन उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के इंसाफ के साथ साथ उसकी रहमत और उसकी इनायत के मज़ाहिर भी बहुत सामने आएंगे। मिसाल के तौर पर एक हदीस पाक में है कि अल्लाह के रसूल से फरमाया कि इंसान अल्लाह के सामने पेश होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके करीब आएगा सरगोशी की कैफियत में कि इंसान को अल्लाह याद दिलाएगा, ए इंसान तुझे याद है तूने फुला फुला दिन ये बुरे काम किए थे। और इंसान उनका इकरार करेगा तो अल्लाह फरमाएगा क्या मैंने तेरे गुनाहों को दुनिया में पर्दे में और राजदारी में नहीं रखा था? तो इंसान जवाब देगा या अल्लाह बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। तो अल्लाह फरमाएगा जा आज भी मैंने तेरे ऊपर पर्दा किया है, आज भी मैंने तेरे उन गुनाहों पर पर्दा किया है और आज मैंने तुझे माफ कर दिया, तू जन्नत के अंदर चल। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल, उसका एहसान, उसकी इनायत, उसकी रहमत होगी। लेकिन अगर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब किताब लेना चाहे, पाई पाई का हिसाब किताब लेना चाहे, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं कुरान के अंदर? इंसान तो छोड़े, कोई रुई जमीन पर जानवर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मैंने उन्हें उनके लिए एक अजल मुसम्मा रखा हुआ है, एक अपॉइंटेड फिक्स टाइम है। जब वहां पर वो आएंगे तो वहां अल्लाह तबारक व तआला उनके मामलात का जो है वो हिसाब फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उनके मामलात से बेखबर है। कितना खूबसूरत अकीदा है ये। और इसके अंदर कितनी मतलब है कि रूहानी तौर पर उन इंसानों के लिए तस्कीन है कि जो इस दुनिया में नेक काम करते हैं कि उनके अमाल ज़ाया नहीं जाएंगे, एक न एक दिन उनको उसका अजर जो है वो ज़रूर मिलेगा, अगरचे दुनिया में लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और दुनिया में लोग उसको बिलीव नहीं करते हैं। तो अल्लाह के सामने ये फरिश्ते उसका करीम जब पेश करेगा तो अल्लाह क्या फरमाएगा?
अलकिया फी जहन्नम कुल्ल कफ्फारिन अनीद। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ अलकिया जो है वो तस्निया है, दो। अगर आप कहें कि एक आदमी को कि तुम फेंको तो उसको आप कहेंगे अलके। इसी मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ताला ने कोहे तूर पे क्या फरमाया, अलके माफी यमीन का, कि हजरत मूसा अलैहि सलाम आपके दाएं हाथ में जो है उसको फेंके, यानी अपनी असा को फेंके। तो वह मूसा अलैहि सलाम को इनफिरादी तौर पर खिताब हो रहा है। और अलकिया से मुराद यहाँ पर तस्निया है कि कुछ मुफस्सिरीन ये कह रहे हैं कि दोनों फरिश्तों से ये कहा जाएगा कि इस इंसान को जो कि कफ्फार, इंतहाई नाशुक्रा, एक है काफिर जी और एक है कफ्फार। तो अल्लाह तबारक व तआला के जो अस्मा है, सिफात हैं, उसमें मिसाल के तौर पर गाफिर, मगफिरत फरमाने वाला, गफूर भी है, गफ्फार बहुत ज्यादा मगफिरत फरमाने वाला, सातिर पर्दापोशी करने वाला, सत्तार बहुत ज्यादा पर्दापोशी करने वाला। तो ये मुबालगा का सीगा है। इसके अंदर बहुत ज्यादा यानी इंसान की जो बात है उसको बताया गया है। कफ्फार यानी नाशुक्रा, इसके अंदर दो तौजीहात की गई है। एक तो ये है कि जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र नहीं करता है और बहुत ज्यादा शिकायतें करता है, और दूसरा जो इंसान अल्लाह के वजूद को से इनकारी है और अल्लाह के दीन को, अल्लाह के पैगंबरों को नहीं मानता है, और उसके अंदर वो क्या करता है कि न सिर्फ वो नहीं मानता है बल्कि उसके अंदर आखिरी हद तक जाता है और वो दूसरों को भी क्या करता है, इसकी तरफ बुलाता है। अनीद, अनीद के अंदर जिसके अंदर इनाद है, वैसे जिसके अंदर तशद्दुद है, जिसके अंदर जिद है और जिसके अंदर इसरार है उस काम करने के ऊपर, अगरचे उसको लाखों दलीलें दी जाएं, लेकिन वो बदबख्ती की इंतहा पर पहुंचा हुआ है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अलकिया, तुम दोनों इसको हर उस शख्स को जो नाशुक्रा और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान था, गुनाहगार था और उसको नहीं मानता था और उसके साथ जिद्दी और हठधर्म था, उसको जहन्नम के अंदर फेंक दो। अलकिया, थ्रो हिम, यानी कि वहां जाके ले जाओ, बल्कि उसको उठा के वहां पर फेंक दो वैसे। और एक तौजीह इसकी ये है कि ये बाज औकात अरबी जबान के अंदर बाज औकात सीगा तस्निया का इस्तेमाल होता है, डुअल का, डबल का, लेकिन मीनिंग सिंगल के होते हैं कि ए करीन तुम जाके इसको वहां पर फेंक दो। तो लेकिन एनी वे इसके अंदर इस जहन्नम में जाने वाले इंसान की तौहीन यहां से शुरू हो रही है कि उसको अल्लाह की तरफ से यानी बुरे अल्फाज के अंदर और बुरे अंदाज के अंदर जो है उसका अंजाम बताया जा रहा है। और फिर उस शख्स की ये एक तो बात थी कि कफ्फार था, अनीद था, मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन मुरीब। इसके साथ क्या था, मन्ना, ये भी इसके अंदर भी जो है ना मुबालगा मेजी है। एक है माने, मीम अलिफ नून ऐन, ये इसके अंदर आप कहते हैं इस काम के अंदर कोई बात माने नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं मन्ना, नून के ऊपर तशदीद, तो माना ये है कि ये इंसान अपनी आखिरी हद तक गया किसी चीज को रोकने के लिए, किसी चीज के अंदर रुकावट बनने के लिए। और ये रुकावट किसके लिए बना था, मन्नाइन लिल खैर। ये क्या करता था कि न तो खुद अच्छा काम करता था बल्कि दूसरों के सामने रुकावट बनता था। अस्तगफिरुल्लाह, अलयाज़ बिल्लाह। एक इंसान नेकी न करे ये उसकी बुराई है, लेकिन दूसरा इंसान अगर नेकी करना चाहता है उसके सामने रुकावट बन जाए और उसको भी रोके, तो ये कौन लोग थे। ये मिसाल के तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत देना शुरू की, तो आपकी दावत के रास्ते में जो लोग रुकावट बन रहे थे, अबू जहल, उतबा और शैबा और अबू लहब, ये वो लोग थे।
यानी हम सब कुरैश को नहीं कह सकते हैं कि वो सारे के सारे ऐसे थे, लेकिन उनके इस्लाम को कबूल करने के अंदर ये लोग रुकावट थे। ये खुद नहीं मानते थे और जो मानता था तो उसको भी परसिक्यूट करते थे। तो मन्नाइल लिल खैर। और दूसरी एक बात यह है कि हमारे यहाँ कुरान पाक में लफ्ज इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद आया हुआ है। तो खैर से मुराद वहां पर क्या है? माल दौलत, कि इंसान माल दौलत को पसंद करता है। तो यहाँ पर दो मीनिंग उलमाए किराम जो है वो लेते हैं। मन्नाइल लिल खैर का मतलब ये है कि वो माल दौलत के मामले के अंदर बहुत ही सख्त किस्म का वाकया हुआ कि न तो वो खुद खर्च करता था अच्छे कामों में और न दूसरों को करने देता था। और मन्नाइल खैर का दूसरा माना जो होगा कि अच्छाई न तो खुद करता था और न ही किसी और को करने देता था। इसके मुकाबले में कौन लोग होंगे? माशाअल्लाह, वो लोग होंगे जिन्होंने दूसरे लोगों को अच्छे काम की दावत दी। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन। उस इंसान से अच्छा इंसान कौन होगा जिसने खुद नेक काम की और दूसरों को नेक काम की दावत दी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस कैटेगरी में रखे वैसे कि हम खुद भी अच्छे काम करें और हमारे कहने पर और हमारी टीचिंग और हमारी दावत पर कोई नेक काम करेगा तो वो हमारे लिए सदका जारी होगा। मोतदिन, मोतदिन के माने हैं कि जो हुदूद को क्रॉस करता है, वैसे लिमिटेशन जो है, वो जो है क्या कहते हैं, ट्रांसग्रेस करता है, हुदूद को पार करता है, तमाम हुदूद को पार करता है। और मुरीब, मुरीब का माना है जैसे आप कुरान पाक में सूरह बकरा का जब आगाज होता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो रैब के माने में है शक शुबा करना। तो मुरीब उसी से है जो इंसान शक करता है। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ शक करने वाला नहीं है, बल्कि मुरीब जो दूसरों को भी शक में डालता है। वैसे अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते हैं, उसके वजूद से इनकारी है, लेकिन उसका प्रचार करते हैं कि अल्लाह का वजूद कहाँ पर है। वैसे अल्लाह का वजूद कहाँ पर? वो कहते हैं कि इस वक्त मजालिम हो रहे हैं दुनिया में, गरीब और मासूम बच्चे जो हैं उन पर जुल्म हो रहा है। तो ये सवाल करते हैं कि अल्लाह कहाँ पर है, उसको रहम क्यों नहीं आ रहा है, वैसे अल्लाह ताला इनको क्यों नहीं बचा रहा है। वैसे तो वो दूसरे लोगों को भी तरगीब देते हैं कि खुदा के वजूद से इनकारी बने। खुद उनके अंदर शक है और दूसरों के अंदर भी, दूसरों को भी शक के अंदर मुब्तला करते हैं। तो ये उस शख्स, उनकी सिफात है। अलकिया फी जहन्नमा, उस हर इंसान को जहन्नम में डाल दो जो नाशुक्रा है, जिसके अंदर इनाद है, हठधर्म है, जिद्दी है, खैर को रोकता है और जो खैर की तरफ आते हैं उनको रोकता है, और जो हुदूद को तजावज करता है और जो शक में मुब्तला है और दूसरों को शक के अंदर मुब्तला करता है। अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखरा, और उसने अल्लाह के साथ दूसरों को माबूद बनाया। अब ये उसका कैटलॉग जो है वो उसकी लिस्ट बढ़ती जा रही है, ये उसकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। इलाहन आखरा फअल्कियाहु फिल अज़ाब शदीद, न सिर्फ इसको जहन्नम में डालो बल्कि अलकियाहु, थ्रो हिम इन सिवियर पनिशमेंट, टॉर्मेंट, सख्त किस्म के अजाब के अंदर इसको मुब्तला करो। अब यह क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला का गजब जो है वो क्लाइमेक्स के ऊपर है, और अल्लाह तबारक व तआला जो रहमान और रहीम है, जो रब्बुल आलमीन है, जो गफूर रहीम है, जो लतीफ है, जो करीम है, वदूद है, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन उनके लिए क्या कहेगा? अजीजुन जुन्तिकाम, जब्बार, मुतकब्बिर। अल्लाह तबारक व तआला की ये जो सिफात हैं इनका मुजाहिरा होगा। अल्लाह फरमाएगा इनको सख्त अजाब के अंदर डाल दो। काल करीनुहु रब्बना मा अतगैतुहु वलाकिन कान फी दलालिन बईद। उसका करीन, इंसान का जो साथी होगा, अब यहाँ बताया तो नहीं क्या है, आखिर में थोड़ा सा
जो सियाक सलाम से सबक से पता चलता है कि उस वक्त इंसान और उसके करीम के दरमियान बहस होगी, आर्गुमेंट होगी। ये करीन जो है, यहां पर करीन से बाज मुफस्सिरीन कहते हैं इससे मुराद शैतान है वैसे, और पिछले उसमें उन्होंने फरिश्ता मुराद लिया था, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ मुफस्सिरीन कहते हैं करीन, दोनों जगह करीन से मुराद फरिश्ता है। तो वहां करीन से इंसान की बहस होगी कि मैंने ये काम नहीं किए थे, आपने खामखा ये चीजें मेरे रिकॉर्ड के अंदर लिख दी है। तो वहां अल्लाह के सामने झगड़ा होगा और इंसान अपने आप को पूरे तौर पर बचाने की और मासूम बनने की कोशिश करेगा। वो करीन कहेगा, रब्बना मा अतगैतुहु, ए अल्लाह मैंने इसके साथ ज्यादती नहीं की। तुगयान, तुगयान किसको कहते हैं कि जब नदी के अंदर, नहर के अंदर, दरिया के अंदर पानी जो नॉर्मल लेवल होता है उससे ऊपर चला जाए तो उसको कहते हैं तुगयान। वैसे यानी मैंने इसके साथ कोई ज्यादती नहीं की है। वलाकिन कान फी दलालिन बईद, लेकिन ये इंसान खुद ही इंतहाई गहरी क्या नाम है, गुमराही के अंदर मुब्तला था। तो यहां से हमारे कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इंसान के साथ जो एक जिन्नी है, जो एक शैतान है, उसका वहां पर होगा, और वो जिन्नी और वो शैतान अल्लाह के सामने ये कहेगा कि मैंने इसको चीजें खूबसूरत बनाकर पेश की थी, इसको मैंने मजबूर नहीं किया था, जो भी काम इस किया था ये खुद उसका जिम्मेदार है वैसे। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाएंगे, क़ाल ला तख्तसिमू लदय्या, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरे सामने झगड़ा मत करो, मेरे सामने यहाँ मेरी बारगाह में झगड़ा मत करो। मैंने यहाँ लोगों के, इंसानों के फैसले करने हैं, और तुम्हारे रिकॉर्ड और जो गवाही हैं उनकी बुनियाद पर तुम्हारा यहाँ पर फैसला हो रहा है, और तुम मेरे सामने यहाँ झगड़ा मत करो। ये झगड़े करने की जगह नहीं है, ये हिसाब और अकाउंट चुका देने की जगह है। ला तख्तसिमू लदैया, मेरे सामने झगड़ा मत करो। वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद, मैंने तो तुम्हारे सामने ये वार्निंग कई मर्तबा पेश की थी, पैगंबरों के जरिए, अल्लाह के नेक बंदों के जरिए, अपनी किताबों के जरिए मैंने आपके सामने ये वार्निंग पेश की थी कि ऐसा होगा, और तुमने इसके ऊपर गौर नहीं किया था। मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, मेरे पास जो है ना, जो मेरा फरमान है, कौल है, मा युबद्दलु, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगी, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। जो मेरा फरमान है वो अटल है। वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और न ही मैं इंसानों पर, मतलब ये है कि जुल्म करने वाला हूं। जुल्म यानी मैं उनके ऊपर जुल्म नहीं करना हूं, बल्कि मैं उनसे, उनके साथ इंसाफ के साथ पेश आने वाला हूं। तो ये उस वक्त इंसान का अल्लाह के सामने जो है ये मुलाकात होगी, और वहाँ हिसाब किताब होगा, और वहाँ का जो मंजर है वो सारे के सारा पेश किया जाएगा। और ये थोड़ी सी तफसील है मजीद कि अल्लाह ने क्या फरमाया, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलात व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह, कितनी खौफ का मकाम होगा वैसे। अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे जहन्नम से, हालांकि अल्लाह को इसका इल्म होगा वैसे, अल्लाह को इसका इल्म है कि जहन्नम के अंदर इंसानों को फेंका गया है, और जहन्नम के अंदर इंसानों को ऐसे फेंका गया है कि वहां उनके लिए कोई कंफर्ट नहीं है, कि जिस तरह जेल के अंदर बाज ऐसी जेलें होती हैं, यहाँ पर दुनिया में इतने अकूबत खाने हैं कि जेल का कमरा जो है, बाज औकात इंसान का सर उसके साथ टकराता है वैसे,
और ऐसी ऐसी तंग कोठरियां होती हैं कि इंसान उसके अंदर पूरी तौर पर सो नहीं सकता है, लाइट का मसला है, और ये जितना तकलीफ दे उस प्रिजन के लिए बना सकते हैं, इस दुनिया के अंदर ऐसी जो है ना जेलें और बनाई गई हैं, सेल, लेकिन वहां पर जो होगा वो उससे भी ज्यादा होगा। कोई ये नहीं कि किसी को अलग कमरा दिया होगा, तमाम को एक जगह फेंक दिया गया है, वैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, आग के अंदर मुब्तला है, तकलीफ के अंदर है, रो रहे हैं, दर्द है, ये तमाम चीजें हैं। और अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाएंगे जहन्नम से, ये हलिम तलाते व तकूल हल मिन मजीद, क्या तुम फिलअप हो चुकी हो, ये, और वो कहेगी क्या कुछ और भी है नहीं। तो इसके दो मीनिंग ली है उलमाए कराम ने। तकूल हल मिन मजीद का माना ये है, एक माना कि या अल्लाह क्या आपके गुनाहगारों की अभी कोई तादाद और भी बाकी है वैसे, कि जिनको आप मेरे पास भेजना चाहते हैं, वैसे ऑलरेडी मैं टू मच फिलअप हो चुकी हूँ वैसे। और दूसरा ये होगा कि भी मैं औरों को भी अकोमोडेट कर सकती हूँ। तो इससे क्या मुराद है कि जहन्नम के अंदर किसी किस्म की आसानी नहीं होगी, और इंसान बुरे तरीके से एक दूसरे के ऊपर जो है वह डाले जाएंगे, और वहां अजाब के अंदर जो है वो मुब्तला हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस तकलीफ दे मंजर से बचाए। अल्लाह हमें दुनिया में ऐसे अमाल की तौफीक दे कि हमारा खात्मा बिलखैर हो, और हमारा हिसाब यसीर हो, वैसे हमारा हिसाब सवाल और जवाब आसान हो। आमीन। और अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम की बजाय जाने की बजाय अपने गुनाहों की सजा के तौर पर अल्लाह ताला हमें डायरेक्ट जन्नत के अंदर ले जाए, और जहन्नम बिल्कुल हमें न दिखाए, और अल्लाह तबारक व ताला हमें जन्नत के अंदर जो है ना सीधा वो मकाम अता फरमाए। फिर क्या फरमाया, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद, और जन्नत को मुत्तकीन के लिए करीब कर दिया जाएगा, बहुत ही करीब कर दिया जाएगा। जुल्फा के माने होते हैं करीब, कुर्ब, जुल्फा के माने में, और गैर बईद के माने में कि नॉट टू फार। इसका मतलब यह है कि जो मुत्तकीन होंगे उनका एजार और इकराम और उनका एहतराम क्या होगा कि उनको ज्यादा चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जन्नत को उनके करीब कर दिया जाए। यहाँ एक सवाल जहन के अंदर आता है, क्या जन्नत और दोजख के पास भी ये सलाहियत होगी कि दोजख से अल्लाह तबारक व तआला हम कलाम हो रहे हैं, और दोजख जवाब दे रही है, और जन्नत को हुक्म दे रहे हैं कि तुम चलकर इधर आ जाओ। तो ये हम दुनियावी जबान के अंदर इसको नहीं समझ सकते हैं। हमारे जो पैमाने हैं बोलने के और सुनने के, दूर के और नजदीक के, ये दुनिया के अंदर है। वैसे ये आलम आखिरत के अंदर ये तमाम चीजें, तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का जलवा बिल्कुल वहां सामने होगा, बिल्कुल वहां सामने होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को खिताब फरमा रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को खिताब फरमा रहे हैं कि मुत्तकीन को तुम्हारे पास चलने की, आने की जरूरत नहीं है, तुम मुत्तकीन के पास आ जाओ। यानी ऐसे गोया कि कोई कोई सीढ़ी लगाई हुई है बड़ी खूबसूरत सी, कि मुत्तकीन वहां इंतजार करें, और उस सीढ़ी के जरिए उनको जन्नत के अंदर एजाज और एहतराम के साथ ले जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन मुत्तकीन के अंदर शामिल फरमाए। या अल्लाह तेरे करम की कोई कमी नहीं है कि हम भी उन अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हों कि जिनके सामने जन्नत को पेश किया जाए, और उनको जन्नत में जाने के अंदर जो सफर करना पड़ता है, तकलीफ वगैरह, उससे भी अल्लाह ताला उनको बचाए, बल्कि जन्नत उनके सामने जो है वो पेश की जाएगी, गैर बईद, उनसे दूर नहीं होगी। हादा मा तुअदूना। हाँ, एक हदीस पाक के अंदर अभी मेरे सामने उसका
रेफरेंस तो याद नहीं है वैसे, लेकिन बहरकैफ एक हदीस पाक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर हर इंसान के लिए जगह बनाई है। हर इंसान के लिए एक जगह रिजर्व है जन्नत के अंदर, और कौन इंसान उसके अंदर जाता है? जो लोग कोशिश करेंगे। और फिर एक जगह मैंने ये भी पढ़ा, मेरे पास रेफरेंस नहीं है, कि जन्नत के अंदर अगर जन्नत के अंदर जगह बाकी रह गई फिर भी, तो अल्लाह तबारक व तआला नए इंसानों को पैदा फरमाएगा उस वक्त। कितना अल्लाह मेहरबान है कि वो जगह खाली न जाए। अल्लाह तबारक व तआला नए इंसानों को पैदा फरमाकर उसी वक्त उनको जन्नत के अंदर ले जाएगा, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत जो है वो पूरी की पूरी इस्तेमाल के अंदर जो है वो आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला से ये बातें बईद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, वो मालिक है। हादा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज, ये वो बात है जिसका वादा किया गया था। और अव्वाब, ये अव्वाब जो है ये सिफत है किन लोगों की? जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। जो इंसान बुराई से दूर होती हुई, बचती हुई, बातिल से, तागूत से किनारा कशी करती हुई हक की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, मुतवज्जे होते हैं, उनके अंदर रगबत होती है, उसको अव्वाब कहते हैं। और ये अंबिया किराम की भी सिफत है, औलिया की और सुलहा की भी सिफत है कि वो बुराई से बचते हुए वो नेकी की तरफ मुतवज्जे होते हैं और उस पर गामजिन होते हैं। लिकुल्ल अव्वाबिन, हर उस इंसान के लिए कि जो बुराई से बचते हुए नेकी की तरफ मुतवज्जे होते थे। अल हफीज, और हफीज के मानी ये है कि भी वो उस रास्ते के ऊपर जिसको उन्होंने अपनाया था उसके ऊपर वो गामजन थे। यानी हफीज का तर्जुमा तो हम लिटरली ये करेंगे ना, किस चीज को प्रिजर्व करना। जैसे हाफिज साहब हैं, कुरान पाक को याद करते हैं, किसी ने कोई सूरत याद की है, कोई नज़म याद की है, तो हम हफीज उसके माने में लेते हैं। लेकिन हफीज का मुराद यहाँ पर यह है कि जो अल्लाह के रास्ते को अपनाए हुए उसके ऊपर गामजन थे और उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से काम करते थे, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह के रसूल से हमने क्या फरमाया कि जो लोग मुसलसल एक काम करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी ने एक रूटीन बनाया कि उन्होंने एक पाव रोजाना कुरान पाक का पढ़ना है, 2 रकत नफल उन्होंने चाश्त के पढ़ने हैं, 2 रकत नफल उन्होंने तहज्जुद के पढ़ने हैं, 100 मरतबा 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, कलमा पढ़ना है, मिसाल को इस्तिग़फ़ार करना है। उन्होंने ये रूटीन बनाया हुआ है, तो अल्लाह तबारक व तआला को ये रूटीन उनका पसंद है। वैसे और अल्लाह तबारक, हुजूर से फरमाया कि अल्लाह ताला को मुदावमत, यानी लोग जिसको मेंटेन करते हैं एक काम को, तो अल्लाह को पसंद है कि मेरे इस बंदे ने अपना एक रूटीन बना रहा है, उसके ऊपर चल रहा है और उसको मिस नहीं करता है। तो हफीज से मुराद तकरीबन वही है कि जिन्होंने एक रास्ता अपनाया था उसके ऊपर वो लोग चल रहे हैं। और उन लोगों की और क्या सिफात हैं? माशाअल्लाह, मन खशिय बिर्रहमान बिलगैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब। अभी देख मुत्तकीन की सिफात बयान हो रही है। जो लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफात बयान कर रहे हैं, उनकी कमालात और उनकी क्वालिटीज। मन खशियर रहमान बिलगैब, जो अल्लाह से, अल्लाह को देखे बगैर अल्लाह से डरते थे। अल्लाह को उन्होंने देखा नहीं, लेकिन उसको देखे बगैर अल्लाह से वो डरते थे। वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, और अपना दिल ऐसा उनका था मुनीब। अब ये मुनीब भी तकरीबन अवाब की तरह है। अनाब, अनाबा युनीबु इनाबतन के माने हैं तवज्जो करना। और ये अल्लाह की भी सिफत है और अल्लाह के बंदों की भी सिफत है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है, उनकी दुआओं को सुनता है, तो अल्लाह ताला मुनीब है वैसे। और बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है और अल्लाह ही उसके ज़हन में होता है, तो वो भी है। तो ये दो और क्वालिटीज अल्लाह ने बयान फरमाई
کہ جو اللہ سے اللہ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کوئی چیز ہمارا عمل اللہ کی نگاہ سے اللہ کے علم سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے، کوئی باہر نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہے، اس کے مشاہدے کے اندر ہے، ہر وقت ان کے دل کے اندر یہ کیفیت رہتی ہے۔ ان کو کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام، انٹر دا پیراڈائز پیسفلی، یعنی آپ کو اندر جاتے ہوئی بھی کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کو اندر جاتے ہوئی کوئی تکلیف نہ ہو کہ جنت میں جانے والے ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیں گے کہ میں پہلے جاؤں گا، بھائی مجھے سیٹ وہ فلاں جگہ مطلب ہے کہ قبضہ کر لوں، یہ اچھی جگہ نہیں۔ ادخلوها بسلام، جنت کے اندر آرام کے ساتھ اور امن اور سلامتی کے ساتھ جائیں گے، وہاں کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ میری سیٹ آپ نے، میری جگہ، میرا محل آپ نے قبضہ کر لیا ہے، وہ اچھی جگہ پہ میں جا کے پہلے جا کے وہاں قبضہ کر لوں، پھر اپنے رشتے داروں کو بھی بچوں کو بلاؤں، نہیں۔ ادخلوها بسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہوگا، فرشتوں کا یہ کلام ہوگا، ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، اور یہ دن کون سا ہے؟ ہمیشہ رہنے کا ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، اس کے اندر وہ جو کچھ چاہیں گے ان کو ملے گا، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہے، وہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جس کی وہ خواہش کریں گے وہ تو ملے گا، لیکن اور بھی ہمارے پاس ان کے لیے ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام، قرآن پاک کی یہ آیات جب صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، صحابہ کرام جو امیجیٹ ریسیپینٹ تھے قرآن کے اور حضور کی دعوت کے، تو ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہوگا کہ ان کا ایمان جو تھا وہ چٹان سے بھی زیادہ مضبوط تھا، اور انہوں نے اس دنیا کو مطلب یہ کہ اپنا پرپس نہیں بنایا، بلکہ آخرت جو تھا ان کا منشا تھا، سب کچھ تھا، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو اور دین کو سیکھا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں جنہوں نے آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اقوال کو، آپ کی اداؤں کو جو ہے محفوظ کیا، اپنی زبانوں میں، اپنے سینوں میں اور امت تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان پر ہزاروں کروڑوں رحمتیں ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ قاف کی جن آیات کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں ہماری زندگی میں، دنیا اور آخرت میں جاری اور ساری رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین، شکریہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ مولانا، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس دوران میں، اور ہمارے بھی جاننے والے جو ہیں، آج ہمارے یہاں لوکل ایک صاحب تھے، بزرگ تھے، زمین خان صاحب، آج ان کا جنازہ تھا، ان کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے آپ دعا کریں، اور ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو ہم نے سورہ فاتح پڑھی ہے، سورہ اخلاص پڑھی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے یہ تمام ہمارے جو مرحومین ہیں، بالخصوص مرحوم عطیہ بیگ صاحبہ، ہمارے بزرگ جناب امیر بیگ صاحب کی اہلیہ جن کا کل جنازہ ہوا تھا،
اور ہمارے دوسرے بزرگ جناب ہمارے مقامی زمین خان صاحب، سکندر زمان خان صاحب، فرحت علی صاحب، محمد رضا خان صاحب، امیر بیگ صاحب، حسن علی صاحب، قاسم بیگ صاحب، عصمت چودھری صاحب، احمد داؤد صاحب، سمیع الدین صاحب، بشیر پٹیل صاحب، عبد الحسن ہاشمی صاحب، عبد النعیم صاحب، اقبال احمد صاحب، محتشم صدیقی صاحب، ڈاکٹر ریحانہ بطول صاحبہ، نفیس حسینی صاحبہ، شاہ رخ خان صاحبہ، شہناز انور صاحبہ، اور ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں ہمارے خاندان کے ماں باپ، آبا و اجداد، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مرحومین کے اللہ مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اور ہماری سرکل کے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ عاصم علی خان صاحب، آمین۔ یہ فریض بھائی کے کزن کے ہسبینڈ ہیں، اور یہ شکاگو میں بہت ہی سیریسلی ال ہیں، اور یہ بہت ینگ ایج ہے، 42 ایئرز۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ انور صدیقی صاحب، یعقوب حسن صاحب، عدیل صدیقی صاحب، بابو بھائی اینڈ شاہدہ صاحبہ، زبیر صاحب، انصار اللہ صدیقی صاحب، اور دیگر تمام جو لوگ بھی بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے۔ اور یہ بیماری دوبارہ زیادہ پھیل رہی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اٹھا لے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ اور درخواست ہماری بہن کی طرف سے آئی ہے، مسز جیلانی کی طرف سے، کہ آپ ریمائنڈ کرائیں جیلانی بھائی کی جو مسجد ہے اس کے لیے جو لوگ آپ لوگ تعاون کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ تعاون کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اس کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا